why will the public listen to you? The public will listen to you if they find value, and if they find clarity. So the first thing which I will, if the youngsters are listening and they really want to emphasize or maybe develop themselves, try to speak clearly. Give out the sentence which the public wants to hear. And don't clutter it with a lot of cool words जो अभी के generation में चल रहे हैं. वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ हैं ज्योति त्रिपाठी। आज हम उनकी स्टोरी जानेंगे, कैसे आउट ऑफ फैमिली प्रेशर शी चोज अ करियर जिसमें वो खुद खुश नहीं थी। आफ्टर दैट उन्होंने करियर स्विच करने के बाद कैसे अपनी लाइफ में पीस लाया, अपनी ड्राइव को फॉलो करा, एंड नाउ शी इज परस्यूइंग हर फुल टाइम इन द साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ करियर। तो लेट्स वेलकम मैम टू अंडरस्टैंड हर जर्नी कि क्या उनका लाइफ पाथ रहा, क्या उनकी ड्राइव रही, क्या उनके गोल रहे इन दिस जर्नी। तो लेट्स वेलकम हर। हाय मैम। Hi Nandini, thank you so much for having me. TVT podcast. I've seen a lot of episodes. I really enjoy the topics that you guys are discussing, and it is really inspiring and helpful for a lot of people. Your viewers will be having a good time. In today's discussion, I think we will go a little bit more deep about how decision making helped me in pursuing a career which I am enjoying right now. The importance of decision making, the factors affecting a decision making. तो मैं बहुत कुछ उस बारे में बताना चाहूँगी, and talking about the career which is the main topic of this podcast. career में initial level पे हम कैसे out of a lot of factors, not only parents जैसा कि आप बोल रहे थे, but even the external factors like your friends, the education that you have, the place that you live, the exposure that you have, इन सारे चीज़ों की वजह से you make a decision and then eventually realize कि क्या वो सही है या नहीं. अगर सही है, you are having a good time. अगर वो सही नहीं है, then what are you supposed to do about it? So I think these things will be a good discussion topics for today. मैम, आई वांट टू नो योर स्टोरी, लाइक कैसे आपने अपना करियर बिल्डिंग पाथ चूज़ किया, कैसे आप अभी जिस पोजीशन पे आप वहाँ तक आए, मतलब बहुत फॉर श्योर डिफ़िकल्टीज फेस कर रही होंगी, चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो आई वांट टू नो योर जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग. So I start with my education. So a little bit about my family, and then maybe my education will have some correlation. So I have two younger siblings. Okay. I am the eldest one. And मेरे पापा का हमेशा सपना ये रहा है कि हमारे फैमिली में कोई डॉक्टर होना चाहिए. So he is very much into medical. It was his dream as well. So that is how he shaped us. कि science is a good subject, you should go for science. That motivation was always there. So after 10th, when we had this choice of going into commerce or science, so definitely आँख बंद करके science. Reason I told you already. So उसके बाद फिर again looking forward to entrance exams. इंजीनियरिंग के अलग एग्जाम्स होते थे उस टाइम पे, एंड PMT होता था मेडिकल साइंसेस के लिए. सो दोनों एग्जाम्स दिए. डिड नॉट क्लियर मेडिकल, उसके लिए एक नेक्स्ट लेवल कैलिबर चाहिए होता है. सो आई क्रैक्ड AIEEE. उसमें 2 सेगमेंट्स थे, एक आर्किटेक्चर और एक नॉर्मल इंजीनियरिंग, जो बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग में भी. But then medical science was fed inside. So I was running behind that, and I landed up into pharmaceutical sciences. Okay. So that was what I got in the counseling. तो मेडिकल साइंस में सबसे जो नज़दीकी मिल पाया फार्मास्यूटिकल, उसमें B Pharm कर लिया, फिर M Pharm कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन में, एंड देन लैंडेड अप इन जॉब ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स. ओके. क्वालिटी एश्योरेंस से M Pharma किया था मैंने. सो मेडिकल रेगुलेटरी अफेयर्स वाज द जॉब. नाउ हाउ डिड आई लैंडेड अप इन दैट? सो वी से ना कि एक विजन होता है, you visualize and things will come true. So I always visualized myself in blazers,
सिटिंग इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस, वो विजुअलाइजेशन हमेशा आता था, वो इंस्पिरेशन मिलता था हमेशा। एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप मूवी में देख रहे हो, आप अपने सीनियर्स को देख रहे हो, सो उस विजुअलाइजेशन हो सकता है वो मैनिफेस्टेशन का रूप लेके मुझे कॉर्पोरेट जॉब मुझे मिल गई इन रेगुलेटरी अफेयर्स। 11 months and then that thing came inside कि this is not a job for me. Now imagine the situation where आपने रास्ते बना बना के वहाँ तक आप पहुँचे हो, trying to fulfill your parents' dream as well, and then trying to stand up for the standards that were set. But then finally you realize कि this is not what you want. Yeah. So वो जो discomfort था, it started pushing me and I started making my way through my interests. That landed up in a marketing job, in a job where I was supposed to interact a lot, which gave me a lot of satisfaction. So marketing job, and then there was one small period where I was into a procurement profile. Okay. Now which was completely out of what even I studied, what even I dreamed of. That was a brief for 5 or 6 months. और वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे maybe we will unfold later, but a lot of moments where I'm sitting in front of a mirror and analyzing the past decisions that I made. So passed through that, I landed up into L&D, and then that turned out to be something which the real calling was. I spent good 10 years now in L&D and completely satisfied with the job profile, the type of work that I do, and now slowly unfolding the next level of the career. So now I am a certified coach, a counselor, pursuing psychology, which I always wanted. And yeah, that is how at current times I am still on my journey. Also मैम, लाइक आपने जब करियर स्विच करा तो फॉर श्योर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, खुद की तरफ से भी, कि क्या पता ये करियर मैं चूज़ करी वो ठीक है नहीं है, इसमें कुछ हमें आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस सब चीज़ों से कैसे डील किया आपने उस पॉइंट पे? So ये जो दिस क्वेश्चन काफ़ी लोग इस तरह से इसको अपने अंदर भी पूछते हैं कि क्या मैं चूज़ कर रही हूँ वो सही है या नहीं। I'll tell you a story about, अभी जो मैंने आपको अपनी पूरी जर्नी बताई उसमें से एक स्टोरी बताती हूँ। The moment when I passed my AIEEE exam, so I was standing at the third position. उसमें जो सेगमेंट था आर्किटेक्चर का, मेरे I stay in a union territory, उस यूनियन टेरिटरी में I was at the third position. जब एक बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड के रेस में नहीं आता है और अचानक से स्टेट लेवल पे वो थर्ड आ जाता है ना, इट हैज़ अ नेक्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो आई वाज लाइक यही करना है, आई एम गुड एट दिस। सो इट वाज आर्किटेक्चर, सो आई स्टूड थर्ड, एंड वन ऑफ माई रिलेटिव्स, वेरी क्लोज रिलेटिव, ही इज इनटू रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में यू हैव आर्किटेक्ट्स। His blunt opinion was architects भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, don't go for architecture. So that opinion somehow affected the decision making, and medical वाला एंगल जो मैंने ऑलरेडी बताया मेरे पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स वर लाइक ठीक है आर्किटेक्चर नहीं करना है, सो फार्मा कर लेते हैं। बट देन टुडे इफ़ आई सी दिस क्वेश्चन कि हम ऐसा कौन सा करियर चूज़ करें जो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, या फिर जो हम ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं डिसीजन या नहीं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू फाइंड योर कॉलिंग। जो लोग इट इज़ अ वेरी नॉर्मलाइज्ड कॉन्वर्जेशन कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम, बट द वैल्यू इट कैरीज बहुत कम लोग उसको रियलाइज कर पाते हैं जब वो गलत डिसीजन में जाके और वो सफ़र करते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ नॉट गोइंग एज पर योर पैशन। तो आई डिड दैट, आई एम अ गुड एग्जाम्पल। आई फॉलोड द पाथ ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड फॉर द डिसीजन, and then landing on a good place. Now regulatory affairs job जो मैंने आपको बताया was not a bad place. People dream about going to that job. When you grow in that ladder,
you are very good at your finance, your power and everything, but is that what you really crave for? Are you craving for money and power? If yes, then go for that decision. But if you are taking that decision because somebody is saying that it is a successful job, it is a successful career, it is having a good demand, at one point of time you will realize ये success मेरे लिए तो कुछ नहीं है. Yeah. So I think successful career का decision will come from within, by analyzing what really makes you happy from inside and then converting that into a career. We are living at a time where I don't think any career is अच्छा नहीं है, ऐसे वाले position पे आप बोल सकते हो. Everything is thriving. You just need that rigor that you make a decision and then make it right. So career decisions are like that. अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि आपके किसी रिलेटिव ने बोल दिया कि आर्किटेक्ट तो भटक रहे हैं, तो ऐसा ही होता है मतलब जब भी आप करियर को चूज़ भी करने जाओगे, मतलब किसी भी लाइफ डिसीजन में कोई कुछ बोल देता है एंड उसके बाद हम अपना सेल्फ डाउट ले आते हैं और उस चीज़ को मान लेते हैं जो कि चाहे वो सच है या नहीं है. Exactly. और वही हमारा कुछ और ओपिनियन है, उनका कुछ और है, बट वी टेंड टू इन्फ्लुएंस. तो उस चीज़ को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, मतलब कैसे हम उस चीज़ को रोकें कि हम उन लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं हो? By knowing what you want. या That is the only answer. उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी. Rather than searching for success and the right thing outside, आपको अपने अंदर पहले ये देखना पड़ेगा कि what is making you happy. I'll tell you one of my classmate. जब मैं ऐसे decisions ले रही थी जो influenced थे मेरे seniors से, मेरे parents से, मेरे relatives से, at that same point of time मेरी एक classmate थी. 12th के बाद काउंसलिंग हो जाता है, सब अपने अपने करियर में लग जाते हैं. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू हर. शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस कि वो क्या कर रही है अपने करियर में. तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टॉक टू हर. शी सेड कि मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ. एंड आई टेल यू, मैंने मास कम्युनिकेशन के बारे में दूर दूर तक सोचा नहीं था उस टाइम पे. वाई? बिकॉज माई ऑप्शंस वर लिमिटेड. And it was those options which were led by my parents, my relatives, जो भी source of information. Internet was not that common at that point of time. So आप जाके career research नहीं कर सकते थे. आपके family members या आपके friends जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो major role play करता था आपके decision making में. So when she said कि I am doing a career in mass communication, I was like, यार ये तो अगर मुझे पता होता तो maybe I would have thought about it. So I realized one thing कि कम्युनिकेशन तो मुझे पहले से पसंद था, ये तो मुझे मालूम था ना. एटलीस्ट नहीं कोई बता रहा था कि ऐसा करियर होता है, बट मुझे तो ये पता था ना कि मुझे बात करना अच्छा लगता है. मुझे पब्लिक स्पीकिंग अच्छी लगती है. आई वॉज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनको हमेशा प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जाता था. वाई? बिकॉज आई वॉज गुड एट इट एंड आई वॉज नॉट नर्वस लाइक अदर पीपल. सो मुझे तो ये तो मालूम था ना कि आई एम गुड एट इट, इट मेक्स मी हैप्पी. सो वाई डिडंट आई गो एंड सर्च और आस्क क्वेश्चन टू पीपल कि इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? तो शायद आज मैंने जितना टाइम वेस्ट किया चीज़ों को ढूंढने समझने में, वो टाइम शायद बच जाता. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, first we need to search within us ki what is making us happy, exactly what we are good at, and then is there any scope of converting it into a career. इस फॉलो में ना टाइम बचेगा. आपके सेल्फ डाउट्स विल कम डाउन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. बट वही एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ वो, मतलब यू लर्नड इट फ्रॉम. आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. या एंड बेसिकली लाइक जब भी आप यू सेड कि अब आप 10 साल आपको हो गए हैं इस करियर फील्ड में, तो मे बी इनिशियल पॉइंट पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई होंगी जिसको आपको लगा होगा कि या तो रिग्रेट हुआ होगा कि क्यों स्विच किया, या फिर बेसिकली सेल्फ डाउट आया हो कि सही था कि मैं पुराने ही उसमें थी, या फिर कुछ कभी ऐसा चीज़ हुई है, कोई डिफ़िकल्टी फेस हुई आपको अपने प्रेजेंट करियर में? सेल्फ डाउट आया एज इन, कैन आई हैव योर क्वेश्चन? मतलब जैसे कि व्हाई डिड आई लीव माय
previous जब career. आप करियर स्विच करते हो तो यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. तो जब आप स्क्रैच से शुरू करोगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज जो उस पॉइंट पे फेस करने वाले हो. उस पॉइंट पे ही वो वाला जो इनिशियल फेज होता है, इनिशियल पीरियड होता है, उसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी चलती हैं कि इससे अच्छा था कि पुराना जॉब अच्छी थी, फाइनेंसेस निकल रहे थे, सब चीज़ें हो रही थी, कि डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ रही थी. तो ऐसा कुछ अभी आप कभी आपकी जर्नी में आया हो इस 10 साल की में? So fortunately नहीं आया ऐसा. And why I will give the credit to my informed decision making. मैंने ऐसा करियर स्विच नहीं किया जहाँ पे आई एम कम्प्लीटली अ स्ट्रेंजर विथ नो क्रेडिबिलिटी. ऐसा करियर नहीं चूज किया मैंने. आई चोज वेयर आई वॉज गुड एट. एंड वहाँ एट द वेरी फर्स्ट, अच्छा, आई डेंट चूज इट. द थिंग इज पीपल चोज मी because they saw the value that I will add in that. So I'll tell you how it happened. My HR ran a skill assessment program. I was into procurement, which is completely a commercial type of job, है ना. आप POs बनाते हो, आप देखते हो, indenting देखते हो, in and out देखते हो. They ran a skill assessment and I applied for it because I knew I want to shift. I knew this is not the job that is giving me satisfaction. Money is okay, but वो contentment नहीं मिल रहा था. So I applied. They took my interview. They gave me assignments, and I did a very good job. I'm very proud of that. I did a very good job, and then they made 2 offers, and I got to choose one. And from the day 1 on itself, there was not a time जहाँ पे मुझे ये struggle feel हुआ हो कि I'm not able to contribute, मेरी credibility नहीं है. I was doing good job, better than people who were already there in some areas which is my strength. So I never felt that. So that is the essence of this. If you do something which is your strength, you will enjoy doing it, first of all, and then आपका वो जो journey है ना, it will be smooth. कोई self doubt नहीं आएगा. मैम, आपकी लाइफ में भी कोई ड्राइव या कोई मोटिवेशन होगी जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है एंड एक कीप गोइंग वाली स्पिरिट को हाई रखती होगी, तो आई वांट टू नो दैट. I am always inspired by strong-willed and successful women who are driven by values. So I tell you, Sushma Swaraj was one of my biggest motivation. I just loved her. The way she carried herself, उनकी बात करने का तरीका. I love Priyanka Chopra's way of talking. So I get attracted to these kind of energies. Not only women, if I say my true role model, जय शंकर, S जय शंकर जो है अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर, I am like, मुझे मज़ा आ जाता है उनको देख के. So these are kind of people who drive me, saying that keep going, keep improving on your existing skills, and you will do a great job. That is what I follow. ऑल्सो हम क्या ऐसे आपके माइंड सेट का शिफ्ट रहा आपके इस करियर की सक्सेस में बेसिकली? अभी तो इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस ओनली, बट स्टिल अभी तक का क्या रहा? This is really an important question. I really love this question. Mind shift. Somebody in my so I was talking to a group of people recently. उसमें से एक ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, which is sticking to my mind for a very long time. That if you are comparing your first chapter with somebody's 10th chapter, then you are doing the harshest thing to yourself. And believe me, I have done this for a very long time to myself. I'll tell you what I'm trying to say. In a career, specifically if we talk about, आपको एक, अगर मैं अपने corporate life में मैं बताऊँ, you will see a lot of people who are working similar to what you work. वही काम कर रहे हैं, उतने ही efforts डाल रहे हैं, and somewhere you will see कि यार उनको तो ज़्यादा पेमेंट मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है, मेरी तो क्वालिफिकेशन भी उनसे ज़्यादा है. So this comparison always brought a lot of pain and agony to myself. मतलब वो मुझे ज़्यादा तकलीफ देती थी. It was nothing that I could change. Yeah. But then as I grew, I understood कि
हर एक आउटकम का कोई ना कोई फैक्टर होता है. सो दीज पीपल हु आर अर्निंग मोर, दे हैड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. उनको उस जॉब प्रोफाइल में काम करने का नज़रिया उनका अलग था. उनके डिसीजन मेकिंग जिस फैक्टर से अफेक्टेड रहते थे वो फैक्टर्स मेरे अंदर नहीं थे. आई रियलाइज्ड दैट एट अ वेरी लेटर स्टेज. तो भले उनके एक्सपीरियंस उनके जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो भले कम हो, भले दे आर डूइंग द सेम थिंग दैट आई एम डूइंग इन टर्म्स ऑफ वर्क, बट व्हेन देयर आर क्राइसिस द वे दे रिएक्ट is something which they have built over a period of time. So you cannot compare that. You will have to live that life to come to that point. So जब ये mind shift change हुआ मेरे अंदर कि I should not compare, I should work, I should take decisions. कि if something is less, अगर मुझे लग रहा है मेरा payment less है, so what is that I should build upon which will take me to that paycheck. जब ये mind shift हुआ, so it changed a lot. Approach मेरा change हो गया. ऑल्सो हम कुछ ऐसी चीज़ें भी आपने लर्न करी होंगी अपने एक्सपीरियंस से कि क्राउडेड प्लेस पे सेम, आप जैसे बोल रहे हो कि सेम सब काम कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, बट आप कैसे स्टैंड आउट करोगे, वो कैसे वो स्टैंड आउट कर सकते हो आप भीड़ में? So बहुत आसान है. क्यों आसान है? क्योंकि प्रकृति ने आपको अलग बनाया है. The nature itself has created each and every individual differently. It is just that we have to identify and build on it. Yeah. So, I'll tell you this. I'll explain to you with the help of a story which hit me very recently. I was in my reunion party. Okay. Few days back, and I have a good amount of dentist friends. So उसमें एक dentist है, so she came to know that I'm doing psychology. She came to me and she started saying that, yeah, this is something which I love and I have a tint of this feeling in my job as well. I was like, आप तो dentist हो, how do you do that? So उसने कहा कि मैं dentist हूँ, but I am in the national health scheme. I'm a dentist in that particular sector of the government. तो मुझे मौका मिल जाता है मास स्पीकिंग करने का, पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिल जाता है. आई सेड हाउ? तो उसने कहा कि आई एम गुड एट स्पीकिंग, आई एम अ डेंटिस्ट. जब भी एक बड़े ग्रुप को एक हेल्थ इनिशिएटिव के लिए बुलाया जाता है और हमें एज अ ग्रुप जाना पड़ता है, सो पीपल टेंड टू कम टू मी एंड आई स्पीक आउट ऑन डिफरेंट हेल्थ इनिशिएटिव्स एंड देन आई डू माई डेंटिस्ट जॉब. आई सेड गुड. आप अगर डेंटिस्ट सुनोगे तो आपको वही दिखाई देगा कि एक डेंटिस्ट का क्लिनिक है, वहाँ पेशेंट आ रहे हैं, एंड सो दिस इज व्हाट शी हैज डेवलप्ड. दिस इज हर पर्सनल ब्रांड. And I'll tell you another story of another friend of mine who is again a dentist. She is a South Indian and she is so extrovert. And dentist की clinic उसने खोली है. And now she is making lot of YouTube videos in such a fun way where she explains कि how you are neglecting your health in terms of teeth health. एंड बड़े फ़नी वे में वो दिखाती है कि जैसे अभी रिसेंटली मैंने उसका एक रील देखा जहाँ पे कहीं एक रैंडम जगह पे ऐसे हथौड़े से दांत खींच रहे हैं. आई डोंट नो कहाँ हो रहा है वो, बट दांत खींच रहे हैं. एंड देन शी पुट दैट रील एंड देन उसने अपना वीडियो डाला रिएक्टिंग टू दैट कि हम कितना हाइजीनिक रखते हैं, देन प्रोज एंड कॉन्स एंड ऑल ऑफ दैट. सच अ फन वे ऑफ एजुकेटिंग पीपल अबाउट डेंटल हेल्थ. नाउ दैट इज बिकम हर पर्सनल ब्रांड. सो यू सी टू डेंटिस्ट्स but they are so different from each other. Now coming to the point, crowd तो बड़ा ही है ना, dentist का crowd बहुत बड़ा है. But then they have stood out. How they have stood out? क्यों उस पूरी dentist की भीड़ में से मेरी उस पहली friend को ही बुलाया जाता है public speaking के लिए? The thing is, she has identified her strength and then she has worked on it. So these two things are really important to stand out as a personal brand. First, identify what are your strengths and which you love doing, and then don't just sit on that. You will have to improve on it, take education, take training, usko और खिलने दो, and then there is no effort in putting a personal brand. You will become a personal brand.
पब्लिक स्पीकिंग आजकल का नीड है, मतलब पर्सनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, आप ऑफिस में हो, घर में हो, या अपने किसी के साथ भी हो, आपको पब्लिक स्पीकिंग मतलब आपको आना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना है, किस वे में अपने आप को प्रेजेंट करना है, वही आपको डिफाइन करता है। तो जैसे हमारी ऑडियंस भी देख रही है और यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, तो उनके लिए आप बता सकते हो कि क्या ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में हमें आनी ही चाहिए और करनी ही चाहिए अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेसिकली। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप यंगस्टर्स की बात करोगे, सो आजकल जेन जी चल रहा है या एंड जेन अल्फा चल रहा है। सो इट इज फन टू सी हाउ दे स्पीक। अभी के उनके जो वोकेबलरी है, जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है, दे हैव अ लॉट ऑफ filler words. I don't know if the word is correct. So they tend to speak like I want, yeah, this, that, as this type of vocabulary is very common in youngsters nowadays. So when it comes to public speaking, why will the public listen to you? The public will listen to you if they find value, and if they find clarity. So the first thing which I will, if the youngsters are listening and they really want to emphasize or maybe develop themselves, try to speak clearly. Give out the sentence which the public wants to hear. And don't clutter it with a lot of cool words जो अभी के जनरेशन में चल रहे हैं. There are words जिनके मतलब आप नहीं पकड़ पाओगे. एंड जो ठहराव होना चाहिए बात करने में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेकिंग प्रॉपर पॉजेस. व्हाई आई से दिस? बिकॉज दिस आई हैव लर्नड फ्रॉम माय सुपर बॉस, माय बॉस's boss. Wonderful lady she is, and she gave us an opportunity to present a very important topic in front of her, which was reflecting on our initiatives that we have taken. She said, Jyoti, you speak good, but you don't give time to sink that idea in, and that is a very important thing to do. आप बात करो, clearly बात करो, but give a pause so that that message goes deep inside and that processing happens in the listeners. So I think these two things, if you are considering public speaking, is very important. ऑल्सो नेटवर्किंग करना कितना इम्पोर्टेंट है टू बिल्ड योर करियर, टू हैव द सक्सेस दैट यू वांट? Networking, so let's zoom out a little bit from networking. तो जब हम ये कहते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए कहते हैं कि नेटवर्किंग करो, तो लोगों को पता चलेगा आप क्या कर रहे हो, तब आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, पीपल विल नो यू. बट एक स्टेप इससे जस्ट पहले, हाँ, अक्सर लोग लेना भूल जाते हैं, वो ये सोचना कि एक बार नेटवर्किंग हो गई तो उसके आगे क्या. हो गई नेटवर्किंग, मान लो लोग आपको जान रहे हैं और लोग आपके सामने आप खड़े हैं, आपको समझते हैं, वहाँ पे यू विल स्टैंड ब्लैंक अगर यू आर नॉट एडिंग वैल्यू टू दैट नेटवर्क. आई हैव अ प्रोडक्ट, आई एम डूइंग अ बिजनेस अबाउट सम सर्विसेज और एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट. आपने सारी एफर्ट लगा दी नेटवर्क करने में, आप जा रहे हो, मीटिंग्स में मिल रहे हो, कॉन्फ्रेंसेज में जा रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो कॉन्फ्रेंसेज, लाइव, बहुत सारे ऑप्शंस है अभी. बट आफ्टर यू गेट समबडी ऑन बोर्ड, what are you adding to that time as a value addition? तो नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है, बट उससे भी पहले ज़रूरी है आप उन लोगों को दे क्या पाओगे. एंड नेटवर्किंग आजकल इट इज़ नॉट अ बिग डील. अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बूस्ट हुई है इतनी, नेटवर्किंग सिर्फ वो नहीं है कि आप 4 लोगों के बीच में जाओ और बात करो, या एक कॉन्फ्रेंस में जाओ, डू पब्लिक स्पीकिंग, या फिर कितने सारे मॉडल्स हैं नेटवर्किंग करने के. यू हैव प्लेटफॉर्म्स जस्ट टू डू दैट. आई केम अक्रॉस वन वेरी गुड आइडिया where business people come together, they just talk about their business, exchange cards, and they do it every week.
So there are so many models, but very important. And then one thing that we neglect, अगर हम networking करना ही चाहे तो एक दूसरा जो benefit है networking करने का, it is not about just you giving something, it is also about what you get. Networking happen both the ways. सही. तो आप किसी को जान रहे हो और वो आपकी लाइफ में क्या एडिशन कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ नेटवर्किंग. सो वेयर यू आर ट्राइंग टू एड वैल्यू, you can do networking in terms of following somebody's podcast, reading somebody's book. Yeah. That is also a type of networking. You get to know that person, you get to know the idea of that person, and somewhere that it will influence your personality as well, or maybe the product and services that you are giving. So it will happen both the ways, and then there are n number of things. Reading a book is the simplest form of doing networking. ऑल्सो आपके कुछ लाइफ में जैसे डिफ़िकल्ट टाइम्स या चैलेंजिंग टाइम आए होंगे, उस पॉइंट पे कैसे अपना अपने मेंटल स्ट्रेंथ और अपना पीस को मेंटेन करा और मतलब ख़राब नहीं होने दिया, इन शॉर्ट? जो स्ट्रेस वर्ड है ना, या उसका मतलब क्या है? सो स्ट्रेस इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ योर बॉडी, योर माइंड, when your mind is not knowing what is there in front of you. आप जहाँ आगे बढ़ रहे हो, जब वो धुंधला दिखाई देता है या फिर वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, that is when your mind is under stress. It is a survival mechanism. तो स्ट्रेस को डील करने का बहुत सिंपल तरीका यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैव एन आइडिया ऑफ कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. मैं अभी एक इंटरव्यू देख रही थी, मिस्टर दीपक वोरा, ही इज एन ऑफिशियल इन फॉरेन सर्विसेज. वो एक इंटरव्यू ले रहे थे एक लड़की का. इट वाज जस्ट लाइक एन इंटरव्यू वीडियो. उन्होंने उसमें उनसे पूछा, वो लड़की से, कि at this point of time there are 59 countries involved in active kinetic war, kinetic conflict. Do you know them? She started thinking about कितने wars चल रहे हैं दुनिया में. Yeah. And सोचते सोचते then he said कि, so she said I cannot know all the 59. Then he said ठीक है, कुछ बताओ, whatever you know. So she started with India, saying that India China war. Then again he stopped him, saying that I'm talking about kinetic conflict. Are we shooting at each other? She said no. तो तुमने कभी यूक्रेन के बारे में नहीं सुना? So she said yes, यूक्रेन का वॉर हो रहा है रशिया के साथ. Yeah. Then she was finding it so difficult to name more. अभी एक बताया, 59 बोला था उन्होंने. Yeah. So then he understood that she got intimidated with that, and he stopped her there and then, and he said that देखो, आपके पूरे सर्विस टाइम में आप 7 से 8 प्रोजेक्ट करेंगी, और आपके जैसे यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स हैं. सो डोंट थिंक दैट द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर मिस्टर XYZ या मिस XYZ. जब आएंगी तो वर्ल्ड चेंज हो जाएगा. Yeah. So what I'm trying to bring you at a point is, we are at the center of our life and we are the hero and heroines of our life. True. तो हमें ऐसा लगता है कि चैलेंज आया है, इसे सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, इतना बड़ा आइडिया बना लेते हैं. बट वी फॉरगेट दैट दुनिया चल रही है, वो चलती रहेगी. यू विल हैव टू फोकस आउटसाइड इन, कंट्रोल द कंट्रोलेबल एंड टेक वन डिसीजन एट अ टाइम. अपना वो स्ट्रेस कम करने के लिए आपको अपने आगे का बस 1 फीट 2 फीट का रास्ता क्लियर करना है. ठीक है, किस टॉपिक पे मुझे स्ट्रेस आ रहा है, उसको मुझे सॉल्व करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, एंड विच वन विल आई गो फर्स्ट, व्हाट कैन आई डू फॉर दैट. अगर आप अपना अगला 1-2 स्टेप भी क्लियर कर लेंगे ना, तो ऐसे करते 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 यू विल रीच समवेयर वेयर यू विल बी हैप्पी. Thank you for the podcast, and if you wish to connect with me, my information is on the screen, and I will see you there. Thank you.